شان سر مجھے نہیں پتا یہ گھٹیا انسان اسے وہاں سے گھسیٹتا ہوا لے کر گیا تھا۔ بتا بتا کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ شان کے ہمراہ وہ عاشر کے گھر پہنچا تو وہ بھی اس بات سے لا علم تھا۔ اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو۔ اس کے سخت الفاظ ملک شاہ نواز کو اپنی توہین سے کم نہیں لگے۔ تمہاری اوقات ہے کہ تم مجھے میری اوقات بتاؤ۔ اگر اسے کچھ ہوا نا شاہ نواز تو تیری قبر میں خود کھودوں گا۔ اس کا گریبان پکڑتا عاشر بھی جذباتی ہوا۔ تم لوگ لڑنا بند کرو گے تبھی ہم اسے ڈھونڈ سکیں گے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے شان دونوں پر چیخا، مجھے پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ فکر سے پاگل ہوتا وہ وہاں سے پولیس اسٹیشن دوڑا۔ وہاں ایف آئی آر درج کروانے کے بعد اس نے سخت سفارش کے لیے آئی جی کو کال بھی ملائی کہ ہنگامی بنیادوں پر شہرین کو تلاش کیا جائے۔ کچھ پتہ چلا وہ گھر پہنچا تو تسبیح کا ورد کرتی سیدہ بیگم کسی اچھی خبر کی منتظر تھی۔ ایف آئی آر کروائی ہے موم؟ اس نے سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ تم نے کیسے اپنی عزت کو بیچ سڑک پر چھوڑ دیا شاہ نواز؟ کوئی فرق نہیں ہے تم دونوں میں۔ ایک بھائی نے آدھے راستے میں چھوڑ دیا اور دوسرے نے آدھی رات کو بیچ سڑک پر۔ شکر ہے اللہ نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی ورنہ وہ تم بھائیوں کا کیا بھگتتی۔ ان کی باتیں اتنی تلخ تھیں کہ شاہ نواز کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اتر کر وہاں آتے شاہ زمان کو بھی اپنا حلق کڑوا ہوتا محسوس ہوا۔ سب سے نظریں چراتا وہ دادا جان کے کمرے میں پہنچا تو ان کو مسلح پر روتا دیکھ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کی بدگمانی نے کتنے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کہاں چلی گئی ہو تم شہرین؟ واپس مڑتے اس نے دل ہی دل میں شہرین کو یاد کیا تو ضمیر نے ڈھیروں ملامت کی۔ دم گھٹتا محسوس ہونے لگا تو اس نے چھت کا رخ کیا۔ پولیس کے پاس کیوں چلا گیا ہے تمہارا دیور؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ نفرت کرتا ہے اس لڑکی سے۔ شہریار پولیس کا سنتے ہی خوف سے کانپنے لگا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ راتوں رات اس کی کایا کیسے پلٹ گئی۔ کال کے دوسری جانب موجود نتاشا خود شاہ نواز کی بے چینی پر ششدر تھی۔ اب میں کیا کروں؟ اس کے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے کرے، مجھے وہ لڑکی اس گھر میں واپس نہیں چاہیے بھائی۔ اس نے نئی ہدایت جاری کی تو ایک ہی جس میں اس سے موبائل چھینتے شاہ نواز نے کال کاٹی۔ کہاں ہے میری بیوی؟ اس کا انداز اتنا سپاٹ تھا کہ چھت کی کھلی فضا میں بھی نتاشا کی سانس رکنے لگی تھی کہ کیا مطلب؟ اس نے اداکاری دکھائی، میری بیوی کہاں ہے بھابھی؟ اس بار وہ چلایا تو شور کی آواز پورے مینشن میں گونجی تھی۔ شاہ زمان بھائی، دادا جان، اس کی چیخو پکار پر سبھی وہاں چلے آئے۔ کیا ہو گیا؟ ان سے پوچھیں کہ ان کا بھائی کہاں لے کر گیا ہے میری بیوی کو۔ اس نے شاہ زمان کو مخاطب کیا۔ شاہ زمان، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نتاشا چوری پکڑے جانے پر بوکھلائی۔ کہاں ہے وہ نتاشا؟ اس بار شاہ زمان نے سوال کیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو فرش پر بے ہوش پایا۔ رات اسے گاڑی میں بٹھاتے ساتھ ہی بے ہوشی کی دوا سنگھا دی گئی تھی جس کے باعث وہ اتنے گھنٹے تک ہوش و حواس سے محروم رہی۔ آنکھ کھلتے ساتھ ہی خود کو سنبھالتی وہ سامنے موجود دروازے کی طرف دوڑی جو بند تھا۔ اس نے لاکھ کوشش کی مگر دروازہ باہر سے لاکڈ تھا۔ پھر نظر کمرے میں موجود واحد کھڑکی پر گئی جو کافی اونچی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اسے کھڑکی کی طرف جاتا دیکھ کمرے کے دروازے سے اندر آتا شہریار پوچھنے لگا، تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ شہرین اس کو سامنے دیکھ سٹ پٹائی تھی۔ کیونکہ میری بہن کو ملک مینشن میں تمہارا وجود کھٹکتا ہے، اس لیے تم اب وہاں کبھی واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ مجھے اب وہاں رہنا بھی نہیں ہے شہریار، مجھے جانے دو، میں دوبارہ اس گھر کا رخ تک نہیں کروں گی۔ اتنی اہم ہو تم جو تمہاری بات مان لوں؟ ویسے قصور شاہ زمان یا شاہ نواز کا بھی نہیں، تمہارا حسن کسی کو بھی دیوانہ۔ اس کا خوف سے سرخ اناری پڑتا چہرہ اور اس پر آتی لٹ کو چھوتے ہوئے وہ بے تکلف ہوا۔ دور رہو مجھ سے۔ شہزین نے اسے خود سے دور دھکیلا تو وہ میز پر گرتے گرتے بچا جس کے نتیجے میں میز پر رکھا کانچ کا جگ توازن بگڑنے کے سبب فرش پر ڈھہ کر ریزہ ریزہ ہوا۔ بدذات، تم نے مجھ پر، شہریار ملک پر ہاتھ اٹھایا؟ اس کی تھپڑ نے شہرین کو فرش کی دھول چٹوائی تھی۔ میرے پاس مت آنا ورنہ مار ڈالوں گی تمہیں میں۔ شہریار کی آنکھوں سے اس کے ارادے بھانپتی وہ فرش پر گرا۔ ایک تیز دھار کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہوئی۔ واقعی وہ اس کی جانب چل کر آتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ شہریار، میں خود کو کچھ کر دوں گی، دور رہو مجھ سے۔ اس نے اس بار کانچ کا ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھا۔ اپنی جان لینا آسان نہیں ہے شہزین بی بی۔ اس کی خالی دھمکیوں کو شہریار نے سنجیدگی سے نہ لیا۔ اس کے مزید ایک قدم آگے بڑھاتے شہزین نے اپنی کلائی کاٹ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرش پر اس کے خون سے
सुर्खी फैलने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शहरयार के पांव वहीं जम गए। शहरीन शहरीन घटिया इंसान। शाहजमान और पुलिस के हमरा वहां दौड़ कर आते। शाहनवाज ने उसे फर्श पर बेहोश होते देखा। उसकी कैफियत देखते ही शहरयार पर घूंसों और ठोकरों की बरसात कर गया था वो। शाहनवाज, अभी से अस्पताल लेकर जाना ज़्यादा अहम है, इससे फुर्सत में निपटेंगे। शाहजमान शहजीन की तरफ दौड़ा जो बेहोश हो चुकी थी। शहरीन, या अल्लाह। उसकी तरफ लपकते ही शाहनवाज ने उसे बाजुओं में भरा और अस्पताल के लिए निकला। शहरयार को लिए पुलिस अपनी मंजिल की जानिब गामजन हुई। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? दादा जान के हमरा सैयदा बेगम खबर मिलते ही अस्पताल पहुंची तो शाहनवाज वार्ड के बाहर यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। इसका बहुत खून बह गया है मॉम। उसके हाथ और सफ़ेद शर्ट भी खून आलूद हो चुके थे। डूब कर मर जाओ तुम, सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। दादा जान उसे अच्छी खासी सुना गए। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। बाहर आते डॉक्टर ने खुशी की खबर सुनाई। हम मिल सकते हैं उससे डॉक्टर? शाहनवाज का फिक्र से बुरा हाल था। इन्हें होश सुबह तक ही आएगा, मगर हाँ, अभी आप उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर ने इजाज़त देते हुए अपने कैबिन की राह पकड़ी। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे माँ के पीछे पीछे कमरे की जानिब बढ़ता देख दादा जान ने टोका। मैं उसे इस सवाल की उम्मीद ना थी। तुम्हारा हिसाब मैं घर चलकर करूँगा छोटे मलिक। मेरी बच्ची बखैर आफियत घर पहुँच जाए तो तुम जैसे अजाब से भी उसे छुटकारा दिलवाना है मुझे। दादा जान ने हतमी फैसला उस पर मुसल्लत किया। मगर दादा जान, उसे अपना आप बंद गली में जाता महसूस हुआ। घर दफा हो जाओ अब तुम। कमरे में जाते जाते वो उसे मजीद बेइज्जत कर गए थे। सुमेरा, तुम? शान, जो शहजीन की अयादत के लिए अस्पताल आया था, सुमेरा को वहाँ देखते हैरान हुआ। शाजी कैसी है अब? वो फिक्र से हाँफ रही थी। बेहतर है। तुम कैसे आई इधर? शाहनवाज भी उसे देखकर चौंका। मैं लाया हूँ इसे यहाँ, आशिर ने उन दोनों को जवाब दिया। तुम? सुमेरा मेरी मनकूहा है शान सर। शाहनवाज को नज़रअंदाज किए उसने शान को वजाहतन बताया। व्हाट? मैं शाजी से मिल लूँ? उन तीनों को वहाँ छोड़ती वो वार्ड की तरफ दौड़ी थी। तुम तो शहजीन। शाहनवाज की सुई किसी हद तक वहीं अटकी थी। कोई बकवास मत करना, वो मेरे लिए बहनों का मकाम रखती है। बचपन से उसे छोटी बहन माना है मैंने, मगर अफसोस भाई होने का फ़र्ज़ ना निभा सका। लेकिन अब निभाऊंगा। शाजी अकेली नहीं है, अब मैं और सुमेरा हैं उसका ख्याल रखने के लिए। आशिर के अल्फाज किसी तमाचे से कम ना थे मलिक शाहनवाज के लिए। शाजी तुम ठीक हो? उसे होश आया तो सुमेरा उसके माथे पर हाथ रखे बोली। सुमेरा? उसकी आंखें अचानक हैरत से फैली। नहीं, सुमेरा का भूत। मेरी जान, कैसी हो तुम? उसका माथा चूमती सुमेरा ने झूठी खफकी दिखाई। ढीठ हूँ, तभी तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिंदा हूँ। शहजीन ने बेबसी से आंखें भींची तो दोनों गालों पर आंसू मार्च करने लगे। मायूसी कुफ्र है शाजी, कैसी बातें कर रही हो तुम? सुमेरा ने उसके दोनों गाल साफ किए। मेरा बच्चा ठीक है। वहां आती सैयदा बेगम ने उसकी जख्मी कलाई पे बंधी पट्टी पर होंठ रखते हुए कहा। जी, उसने जबरन मुस्कुरा कर कहा। तुम आराम करो। इन दोनों सहेलियों को दुख सुख बांटने के लिए तन्हा छोड़ती वो कमरे से ही निकल गए। ये सब क्या कर दिया मैंने? मेरा तकब्बुर, बड़े बोल कैसे गहरे निशान छोड़ गए हैं मेरे चेहरे, मेरे वजूद पर। महज अपने अंदाज़ों की बुनियाद पर मैं किसी के किरदार को मशकूक कैसे कर सकता हूँ? उसने कभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने उसे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया हर बार। मेरी बदगुमानी ने कितनी ज़िंदगियों का सुकून निगल लिया। मैं कैसे कफ़ारा अदा करूँगा अपने गुनाहों का? मेरे मालिक, मुझे कोई रास्ता दिखा। अस्पताल के लॉन में चहलकदमी करता वो अपनी ही सोचों से जंग लड़ रहा था। जब कुछ समझ न आया तो सर उठाकर बेबसी से आसमान को तकते तकते आंखें मूंद गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते शान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मलाइका तो तलाक का नाम सुनते ही पागल होने को थी। आंटी अंकल प्लीज़ प्लीज़ इसे समझाएं, उसे पत्थर का बुत बना दे। वो सास ससुर की तरफ दौड़ी जो खुद लाचार दिखाई दे रहे थे। जो तुम शाजी के साथ कर चुकी हो, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश बचती है मिस मलाइका? शान ने गहरी टोक लगाई। शान एक बार तहम्मुल से वालदा मोहतरमा बेटे को ही समझाने लगी। आप लोग फैसला कर ले, आपका बेटा या ये लड़की? उसने कता कलामी करते माँ को खामोश करवाया। शाम, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ शाम। मलाइका ने सख्ती से उसकी बात धुतकारी तो वो पाँव पटकता घर से ही निकल गया। ध्यान से बैठो इधर मेरा बच्चा। उसे आज 3 दिन बाद घर भेजा गया था। अभी अभी वो लोग घर पहुंचे तो सैयदा बेगम उसे सीधा कमरे में ही ले आई।
बाबा जान रहम करें मुझ पर। नीचे हॉल में बैठे दादा जान के सामने हाथ जोड़ता छोटा बेटा इल्तिजाएं करने लगा, ये अंदर कैसे आया है? अपने ससुर को कहो कि शक्ल गुम करे अपनी। उनका चेहरा देखते दादा जान का तैश बढ़ा था। वो मेरा इकलौता बेटा है बाबा जान, उससे नादानी। नादानी? वाकई चचा, इसकी वजह से मेरी बीवी की जान जा सकती थी। मेरे जीते जी तो अब वो सलाखों से बाहर आएगा नहीं। वहां आते हुए शाहनवाज ने भी चचा जान को कोई उम्मीद ना दिलाई थी, मगर बच्चे, उन्हें बहुत आस थी कि माफ़ी मिल जाएगी। इसने मलिक शाहनवाज की इज्जत पर मैली नज़र रखकर अपने मुकद्दर को खुद आग लगाई है। उसने अटल अंदाज में फैसला सुनाया, आपकी बेटी के लिए भी इस घर में अब कोई जगह नहीं है चचा जान। शाहजमान ने भी चचा को नया सदमा दिया। शाहजमान बेटे, इसे औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत का ख्याल नहीं आया? शाहजमान को नताशा की बेहिसी पर ज्यादा गुस्सा था, जो अपनी नफरत में इस हद तक निकल गई थी। जिसे तुमने बदकिरदार समझकर धुतकार दिया था ना, आज वही मोतबर हो गई तुम्हारे लिए। चचा जान ने लफ्जी तीर चलाए। चचा जान, बस एक और लफ्ज़ अगर आपने मेरी बीवी के मुतालिक कहा ना, तो ना मैं उम्र का लिहाज करूंगा और ना रिश्तों का। शाहजमान से पहले शाहनवाज ने चचा की बोलती बंद करवाई। प्लीज़ जाएं, हम मज़ीद तमाशा नहीं चाहते। शाहजमान को उनकी इज्जत का भी ख्याल था, तभी वो नहीं चाहता था कि वो शाहनवाज से उलझे। जाओ। दादा जान की धाड़ के बाद वो शिकस्ता कदम उठाए मेंशन से निकल गए थे। मैं तुमसे क्या बात करूं? मैं तो तुमसे नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। मेरी खुद साख्ता बदगुमानियों ने तुमसे हर रिश्ता, हर सुख छीन लिया। आई एम सॉरी शाजी, तुम मुझे सारी उम्र माफ़ ना करना, लेकिन मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी माफ़ी का मुंतज़िर रहूँगा। मैंने तुम पर तोहमत लगाकर अपने कम ज़र्फ़ और कमज़ोर होने का सबूत दिया हमेशा। वो रात गए कमरे में पहुंचा तो दवाइयों के ज़ेरे असर वो गहरी नींद में थी। रोज़ रात गए उसके सो जाने के बाद वो कमरे में आता और फिर घंटों उसके सिरहाने बैठा उसे टिकटिकी बांधे देखता रहता। कितना कुछ था कहने के लिए, मगर हिम्मत जवाब दे गई थी। उसका सामना करने के लिए मलिक शाहनवाज को भी मज़ीद वक्त दरकार था। अब कैसी तबीयत है आपकी? वो कमरे से निकली तो शाहजमान शायद उसी का मुंतज़िर था। बेहतर हूँ, आई एम सॉरी शहजीन। उसने होठों को चबाते जुमला अदा किया। किस लिए? उसे अब ये मुआज़रत सोच से बालातर लगती थी। जो कुछ मेरी वजह से आपको बर्दाश्त करना पड़ा। आपकी शर्मिंदगी मेरी अजियतों का मदावा कर सकती है? शहजीन के सवाल पर वो एक लम्हे के लिए लाजवाब हुआ। नहीं। थोड़े वक्फे से उसकी तरफ से जवाब आया, फिर इसे गलत जगह बर्बाद मत करें। मैं आपके माजी के मुतालिक सब जान चुका हूँ और मुझे अपनी हिमाकत पर अफसोस है, जिसने अपने लिए कांटे चुनकर खुद को ही लहूलुहान कर दिया। आपका किरदार मुझ जैसों से लाख दर्जे बेहतर है। अपनी नालायकी तस्लीम करते वो नदामत की इंतहा पर था। जो मर्द दूसरों की बातों में आकर अपनी जिम्मेदारियों को बीच राह में तनहा कर जाए ना, उसका कोई किरदार नहीं होता शाहजमान। और जो मेरे साथ कर चुके हैं, नताशा के साथ ना दोहराएं उसे। उसने लहजा सख्त ना किया, मगर अल्फाज शाहजमान की रूह तक को छलनी करने को काफ़ी थे। अल्लाह आपको खुश रखे। आइंदा प्लीज़ मुझे मुखातिब भी मत कीजिएगा। मेरा किरदार एक और तोहमत नहीं सह पाएगा। उसका कहा जाने वाला आखिरी जुमला कमरे की दहलीज से बाहर की जानिब कदम रखते आने वाले चंद दिनों में शाहनवाज ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह शहजीन से माजरत कर सके, मगर वो उसे मुखातिब करने का कोई इरादा ना रखती थी। वो खुद भी इस कैफियत में था कि ना उसके इसरार पर जोर देकर बात मनवा पाता। वो खुद भी उस कैफियत में ना था कि उससे इसरार और जोर देकर कोई बात मनवा पाता। हम बात कर सकते हैं। वो नीचे हॉल में जा रही थी जब ऐन दरवाजे पर उसका रास्ता रोकते हुए शाहनवाज ने हिम्मत दिखाई। हम बात नहीं करते, झगड़ते हैं हमेशा, और इस वक्त मैं तुमसे उलझने की कैफियत में नहीं हूँ। उसका लहजा बोझल था। शाजी, देखो, मैं मानता हूँ कि बहुत मसाइल हैं हमारे दरमियान और वो इतनी जल्दी हल नहीं होंगे, लेकिन हम बैठकर बात तो कर सकते हैं ना। उसने मज़ाहमत को सरसरी कोशिश की। अब क्या कहना है तुम्हें? कुछ कहने लायक ही तो नहीं बचा, अब सिर्फ सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल में जो है, जितना गुस्सा, शिकवे, सब सुना दो, मैं चुपचाप सुन लूँगा। उसने आज सब हथियार डालकर शिकस्त तस्लीम की। मुझे मुझे किसी को कुछ नहीं सुनाना। उसकी नज़रें अब भी बदस्तूर झुकी थी। मैं जानता हूँ कि तुम नफ़रत करती हो मुझसे। शाहनवाज को उसकी जज्बाती कैफियत का अंदाज़ा भी था। तुम तो मुझे नफ़रत के लायक भी नहीं लगते शाहनवाज।
तुमसे नफरत का रिश्ता रखना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। मैं यहाँ जिस मजबूरी के तहत रुकी थी वो ख़त्म हुई। सुमेरा के साथ मैं इस्लामाबाद वापस चली जाऊँगी। उसने नज़रें उठाई तो शाहनवाज का सांस लेना भी दुश्वार हुआ। उसने बहुत देर से इस बात पर गौर किया था कि हर लम्हा खिलखिलाने वाली वो जिंदा दिल लड़की आज बेरौनक चेहरा लिए खुद ही से बेजार दिख रही थी। तुम्हारे ताया जान मार देंगे तुम्हें। शाहनवाज को उसका फैसला सरासर हिमाकत लगा। जी कर मैंने करना भी क्या है, एक बार का मरना बार बार की मौत से बहुत बेहतर है। अपनी बात मुकम्मल करती वो कदम आगे बढ़ाने लगी। जब तक तुम मेरे निकाह में हो मैं तुम्हें इस घर की दहलीज अबूर नहीं करने दूंगा। उसको वहाँ से जाता देख वो उसे एहसास दिलाने लगा। बेफिक्र रहो, मैं भी ये तोक गले में डालकर यहाँ से नहीं जाने वाली। उसने रुक कर पहले शाहनवाज का चेहरा देखा जो सर झुकाए खड़ा था, फिर हतमी फैसला सुनाकर चलती बनी। आपने बुलाया है दादा जान। दादा जान के बुलावे पर वो हर तरह के हालात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर पहुंचा था। हाँ बैठो। उनका अंदाज मामूल से बहुत ज़्यादा संजीदा था। शाहजमान नताशा को माफ़ करना चाहता है। उन्होंने हाथ में पकड़ी किताब बंद करते लम्ब के पास रखी तो शाहनवाज भी चलकर उनके पास आन बैठा। वो माफ़ करने वाले कौन होते हैं? उसने ज़्यादती मेरी बीवी के साथ की है, ये हक सिर्फ उसको हासिल है। मुआफ़ी का हर्फ आते ही उसके तन बदन में आग लग गई। शाहजमान उसी के कहने पर नताशा को दूसरा मौका देना चाहता है। शहजीन ने इन दोनों बहन भाई को माफ़ कर दिया है। शाहजमान भी कुछ महीनों तक लंदन जा रहा है अपनी बीवी के साथ। शायद मेरे जीते जी वापस ना आए। उनकी आवाज़ से अफसुर्दगी आया थी। दादा जान, शाहनवाज ने उनके हाथ की पुष्ट पर अपना हाथ रखा। लेकिन मैं मरने से पहले एक और बोझ से आज़ादी चाहता हूँ। मुझे लगता है मैंने जुल्म किया है तुम पर, तुम्हारी सकत से ज़्यादा जिम्मेदारी डालकर। तुम सारी ज़िंदगी भी शहजीन को इज्जत नहीं दे पाओगे जो तुम दोनों पर जुल्म होगा। वो अपने किए जाने वाले फैसले पर नादिम भी थे। ऐसा नहीं है दादा जान। शाहनवाज ने उनके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते इनकार में गर्दन हिलाई। तुम हमेशा इस बात से खार खाते थे कि मैं क्यों शहजीन को तुम दोनों भाइयों पर तरजीह देता हूँ। उसकी आंखों में झांकते वो उसके दिल का चोर पकड़ गए। नहीं, तुमने कहा नहीं, मगर मैंने तुम्हारी आंखों से पढ़ लिया है छोटे मलिक। शहजीन इस घर का खून है, मेरी नवासी है। पहले वो उसकी हड़बड़ाहट पर मुस्कुराए, फिर अगले ही लम्हे शहजीन से जुड़े ताल्लुक ने उनकी पलकें भिगोई थी। नवासी? शाहनवाज का तजस्सुस इंतहा को जा पहुंचा था।